So this is Manoj Rathod, and today's topic is a personal legend. The personal legend. When you think about the topic, what's come in our mind? What a personal legend. It a person who always wanted to accomplish your goal, what you want to achieve in future. Like if you want to be a good man, if you want to be a doctor, if you want to be a engineer, in any situation, what is your goal? The person can be your close friend, your mother, your wife, your sister. So you want to say about your personal legend. Who is your personal legend in your review? So first I invite to Ajay ji to speak on personal legend. Ajay Verma ji. Thank you so much, Manoj. And basically, there is no one single person to whom I can dedicate this legend in my life. There are a mixture of several personalities which I admire. Like in literature, if I want to see anybody as a legend, that will be Ghalib Saab and Guljar Saab. And in my personal front, if I want to dedicate this legendary position, that will be my father, and to whom I can dedicate this legendary position because he raised me and my brother and sister in such a fashion and in a very limited resources that today I can admire him because I am in that phase only because I am also having two kids. So I can now understand his position that he might have seen in his 40s. So, and as well as I am feeling that I can give this legendary position to my wife also because she is very understanding in nature and she is pursuing all her hobbies and she is raising kids in a ideal fashion. So I think amalgamation of all these personalities will be my personal legend. Thank you so much, Manojji, to giving me such a opportunity to open this session. Thank you. जी आपने बहुत बढ़िया से समझाया. तो नेक्स्ट है कार्स मिश्रा. जी थैंक यू मनोज भाई सो in my life also there are too many person who are again I admire my father and my grandfather a lot. Uh, I I seen him working so much uh, hard in the agricultural field to who trace me and my sister. Uh, it is a very, I mean, cannot have too much money, but they still um, uh, uh,
fulfill our ambition and goal. And next, I uh, totally admire with the uh, APJ Abdul Kalam of his passion and dedication towards the science, and you can say that his um, his contribution to the uh, Indian missile, I totally uh, admire himself. Thank you. That's from my side. जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया आकाश मिश्रा जी। नेक्स्ट आई इनवाइट टू आकाश वत्स। Yes, thank आकाश you, वत्स। Manoj जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आकाश है और मेरे पर्सनल लीजेंड है MS धोनी, क्योंकि वो बहुत काम नेचर के है और अपनी लाइफ सिंपल जीते हैं, और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है। और उनकी पर्सनैलिटी और जिस तरीके का खेल था, वो एक यूनिक तरीके का खेल था। मेरे दूसरे लीजेंड है हमारे तीसा में मेंबर्स जो है, जो एक्सेप्टेंस की थ्योरी पर है और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। और मेरे तीसरा वैसे ही टीम है, फुटबॉल की टीम है रियल मैड्रिड, क्योंकि उनमें भी एक नेवर डाई एटीट्यूड है और वे लोग भी एंड तक गेम को लेकर जाते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। म्यूट पे आप म्यूट पे। जी, बहुत बढ़िया आकाश वत्स जी, आपने स्लो स्पीकिंग के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और टीसा के जो मेंबर हैं उन्हें भी आपने अपना पर्सनल लेजेंड बताया। आपने बहुत अच्छा बोला। सो नेक्स्ट आई इनवाइट टू आरोग्य जी। Okay, thank you everyone. As far as my personal legend is concerned, it is definitely my father, who has always uh, helped me, who has always helped me to fight in every situation, be it good or bad. And from the day one, he has taught me that in our life
it is not that all the days uh, will be same. And the second I have learned is to keep to keep patience and to continue our duty properly. And the second admirer is my grandfather, who instead of having limited resources have uh, have managed uh, all of us to maintain our family, uh, and has spent money in uh, education, or be it any kind of family related uh, issues. So thank you all. That's all I say. जी, बहुत बढ़िया आरोग्य जी। आपने अपने फादर और ग्रैंड फादर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सो नेक्स्ट आई इनवाइट टू धीरज प्रजापत जी। धीरज प्रजापत जी। ओके मनोज जी, तो मेरे लेजेंड है मेरे फादर साहब, जिनका नाम है नारायण लाल प्रजापति। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया जब मैं स्टैमर करता था, बहुत ही ज्यादा। जब मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, मैं अपनी लाइफ से निराश हो चुका था, तब मेरे पिताजी ने मेरा सपोर्ट किया कि स्टैमरिंग एक कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने माइंड में स्टैमरिंग को एक बड़ी प्रॉब्लम बना दिया है, वरना ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तब उन्होंने मुझे काफी सहानुभूति भी दी और काफी मुझे सपोर्ट भी किया। तो उसकी उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये केवल मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड में काफी लोग हैं, लगभग वर्ल्ड की लगभग 1% पॉपुलेशन है जिनको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने ओवरकम किया है काफी लोगों ने, तो मैं भी कर सकता हूँ। हमारे इस ग्रुप के सत्येंद्र जी है, उन्होंने की है, तो हम भी कर सकते हैं। तब मुझे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे फादर साहब ने ही मुझे काफी सपोर्ट किया इसके लिए। थैंक यू मनोज जी। जी, बहुत बहुत बढ़िया धीरज प्रजापत जी। आपने अपने फादर के बारे में बताया। और नेक्स्ट आई इनवाइट टू पंकज कुमार जी। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। नमस्कार। मेरे प्रोफेशनल एजेंट हैं मेरे सीनियर अफसर इंस्पेक्टर सर। अभी जल्दी हम लोग का क्राइम मीटिंग हुआ था, तो उसमें मैं मैं वहाँ पर मैं मैं अपने थानाध्यक्ष के साथ वहाँ पे गया था मीटिंग में। तो उसमें मैं वहाँ पर कुछ भी हम जैसे बोल नहीं पाए थे डर की वजह से। बाद में फिर इंस्पेक्टर से मिले, तो उसे उसे जो था उनसे हमारा पहले से मतलब काफी मिलना जुलना होता था, बातचीत होता था जब भी आते थे। तो उस दिन के बाद भी जब भी मिले तो काफी हमको पूरा हौसला दिए सर, बताए कि ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। और सभी वो भी कई थानों में जाते हैं, तो वो भी देखते हैं कि मतलब नॉलेज के लेकर भी कहते हैं कि भैया जितना भी तुम्हारे जो भी बैचमेंट है, उससे तुम्हारा जो है भी ज्ञान के कंपेरिजन में आप जैसे आप जैसे काफी अच्छे हैं। ये चलते हकलाना कोई अथी नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। केवल अंदर से हौसला होना चाहिए। हौसला होगा, यदि हौसला रहेगा तो फिर इससे मतलब काफी
अति किया जा इसको अति किया जा टाला जा सकता है। और फिर मेरे दोस्त लोग हैं, और फिर मेरी वाइफ भी है जो इसको लेकर अति करती पर्सनल एजेंट। तब धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया पंकज जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। सो नेक्स्ट आई इनवाइट टू राजू जी। राजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद राजू जी का नेटवर्क इशू है। सो नेक्स्ट आई इनवाइट टू संतोष कुमार जी। ओके राठौर जी, मनोज राठौर जी, उसको मौका देने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि ये है कि आज का टॉपिक है कि पर्सनल लीजेंड कौन है मेरे, तो मेरे भी पर्सनल लीजेंड मेरी मदर हैं, जिन्होंने मेरे के हर मौके पर और जो है हर सिचुएशन पर मेरा साथ दिया है उन्होंने। क्योंकि जब मैं मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और मैं स्टैमरिंग करता था, तो उन्होंने मुझको हौसला दिया और ये बताया कि देखो मतलब हिम्मत नहीं हारना है और ऐसे बोलना है, धीमे करके बोलना है, सांस लेना है। मतलब उन्होंने मुझे जो वो सब चीज़ें बताई उस समय, जो कि मतलब कि बतानी जो चाहिए थी उन्हें, तो उन्होंने जो है बताई। और आज भी जो है हर एक मौके पर वो जो मुझे जो है जरूर उनकी कहती हैं, मेरी हेल्प लेती हैं और जो है मतलब कि मेरा साथ देती हैं। तो ये पर्सनल के तौर पर ये मेरे घर में फैमिली में मेरी मदर बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है मेरी। और मेरे फादर भी हैं, लेकिन थोड़ा सा फादर मेरे कम हैं, लेकिन मेरी मदर ज़्यादा है। और और मेरा जो है, और जैसे कि मैं भी जो है इस समय की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा ग्रुप है, ये जो ग्रुप है जिस पर बात कर रहे हैं, तो लीजेंड के तौर पर आप ही लोग हो जिनसे मैं जो है बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि इन्हीं लोगों से बात करने पर मेरे अंदर हौसला आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हम लोगों को ऐसे बात करनी है, ये सब तरीके सीखने हैं। तो इस समय के टाइम पर जो पर्सनल लीजेंड के तौर पर टीसा के मेंबर्स ही हैं इस समय हैं, तो जो कि हौसला कि बढ़ा रहे हैं इस समय हैं। और बाकी तो मतलब कि कोई ना कोई राहों में कोई ना कोई जो है ना मिल ही जाता है जो कि हौसला बढ़ाता है, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो ही जाता है जिसको कि हम लोग याद करते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा था जिसने कि मेरा जो है ना सपोर्ट किया। अजय सर भी हैं, इन्होंने भी जो काफी कुछ वो किया मेरे को, यानी कि बताया है कि जो है मतलब कि काफी कुछ टिप्स इन्होंने भी हमको दी हैं। और ये जो इनकी जॉब है, उसके अलावा इन्होंने इतनी अच्छी स्टैमरिंग को जो है संभाल लिया है, तो मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो इससे भी हौसला मिलता है। तो यही है। जी, ओके मनोज। बहुत बढ़िया संतोष जी। और जैसा आपने बताया, मदर जो कि बच्चे के बचपन से ही शुरुआत, फर्स्ट टीचर मदर ही होती है। और फिर आपने बताया टीसा के मेंबर, क्योंकि हम स्टैमर की यही बात होती है कि हमें लिसनर की जरूरत है, सुनने वाला, जो कि टीसा वाले मेंबर बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाहर तो जाते हैं ना, तो कहीं कहीं बार लोग इग्नोर से मार देते हैं, वो यहाँ नहीं होता। और सुनने वाले बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। सो और आपने बहुत अच्छे से समझाया। सो नेक्स्ट आई इनवाइट टू सिद्धार्थ जी। हेलो, हाय। क्या आप मुझे नमस्ते सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज साफ आ रही है। हाँ, तो हाँ, तो मेरे जो पर्सनल लेजेंड, ऑब्वियसली मेरे पर्सनल लाइफ जिनको मैंने बचपन से देखा है, वो मेरे फादर हैं। और उनका जो काम करने का जो उनका डेली वो जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, सुबह से लेकर रात का, मीन्स ही वर्क्स 24 into 7 समटाइम्स।
तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसे थके नहीं और बिना थके हुए पूरी लाइफ जो जो एक्टिव के साथ एक्टिव होकर काम करना है का जो प्रेरणा है मुझे उन्हीं से मिलता है। और मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ और अभी वो लगभग 60 साल के हो चुके हैं, बट स्टिल वो 4 से 5 घंटा ही सोते हैं। और ठंड के समय में भी वो सुबह उठ के बहुत एक्टिव, मतलब बहुत सारे काम वो अकेले करते हैं। और हम लोग बस मतलब उनसे प्रेरणा होते हैं। तो वही है कि उनसे मतलब कि मैं कितना ज़्यादा काम कर सकूं, और उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। और दूसरी की स्टैमरिंग से रिलेटेड मुझे प्रेरणा मुझे वो ऋतिक रोशन से मिलती है, सर से। बिकॉज उन्होंने भी स्टैमरिंग होने के बावजूद भी एक तरह से सेलिब्रिटी बनना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम है, और लोगों के सामने रखना और एक्टिंग करना एक तरह से बहुत चैलेंजिंग काम है। और उनका मैंने वो जो 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 ब्लॉग और उनकी जो बायोग्राफी के बारे में जब जाना, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि स्टैमरिंग होने के बावजूद भी जो हम अपने जो हॉबीज है या फिर कोई गोल अपने जीवन में रखे हैं, तो वो हम लोग पा सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग कंटिन्यूअस हार्डवर्क करते रहें और स्टैमरिंग को एक्सक्यूज ना दें। तो ये दो लोग मेरे जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं, और मैं इनसे बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ। धन्यवाद मनोज जी, मुझे मौका देने के लिए। जी सिद्धार्थ जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और जो आपने बात बताया कि फर्स्ट पर्सनल लेजेंड है आपके फादर, वो ज्यादातर लोगों ने वही बताया जो कि सच भी है। और दूसरा आपने बताया कि ऋतिक रोशन का कल बर्थडे भी था। और जिसमें कि उन्होंने बताया कि दी रोशंस के नाम से एक मूवी भी आ रही है, जिसमें कि वो अपने दादाजी और फैमिली मेंबर का सपोर्ट भी बताएंगे। तो ये भी आप मूवी जरूर देखिएगा और जी जी जानने के लिए। जी। जी जी, और आपने बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद। तो जी, सो नेक्स्ट आई इनवाइट टू हारून जी। मनोज जी, मैं चाहूँगा कि आप और लोग पार्टिसिपेंट्स को मौका दें, तो मैं सबसे आखिर में बोलना चाहूँगा। थैंक यू। जी, अभी शायद सभी को मौका मिल गया है। ओके, मेरे ख्याल में ओके, चलें। मैं फिर राजू जी ने बात कर ली। हाँ, राजू जी का नेटवर्क इशू था। जी राजू जी। राजू जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और पंकज कुमार, पंकज। हाँ, हम बोल चुके हैं। ओके, ठीक ठीक। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी बता सकूं कि मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी या जो मेरा पर्सनल लेजेंड है वो कौन है। एवरी पर्सन हैज someone they look up to, admire, and aspire to emulate. For me, that person is my father. He is not just my parent, but my guide, my mentor, and my hero. His presence in my life has shaped who I am and continues to inspire me to strive for excellence. My father is a man of unwavering principles and deep wisdom. He has always taught me the importance of honesty, hard work, and perseverance.
Despite the challenges life throws at him, he remains calm and collected. Uh, he always facing every obstacle with courage and determination. His ability to turn difficulties into opportunities is something that I deeply admire. One of the qualities I cherish most about my father is his selflessness. He prioritized the need of his family above his own, ensuring that we always feel supported and cared for him. His sacrifices for our happiness and success are countless, and they remind me of the boundless love he has for us. In conclusion, my father is my favorite personality because of his strength, wisdom, and selflessness. He is my hero, and his influence will always be guiding light in my journey. I am proud to call him my father and grateful for the values he has installed in me. Thank you. जी हाँ, हारून जी, आपने बहुत अच्छे से बताया अपने फादर जी के बारे में, और सभी ने अपने फादर जी के बारे में बताया है कि ज्यादातर के पर्सनल लेजेंड उनके फादर जी हैं. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी. सो राजू जी, आपका नेटवर्क सही हो गया? Am I audible, sir? जी. Audible? हाँ जी नाउ सर. speak on the topic of who is your personal legend. ओके सर. सर मेरे तो ऐसे जीवन में काफी सारे लोग हैं जो पर्सनल लेजेंड्स के रूप में इन्हें मैं एडमायर करता हूँ. जो इसमें सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स है, जिन्होंने अपनी 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 लाइफ में अपने काफी सारे इच्छाओं और काफी सारे शौकों का सेक्रीफाइस किया है. और और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं सबसे अधिक एडमायर करता हूँ वो है अपने अपने फादर के ऑनेस्टी का. अ, अ, वो एक LIC एजेंट के रूप में काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे काफी लोग ये मानते हैं कि जो LIC के एजेंट होते हैं वो थोड़े ऑनेस्ट नहीं होते. काफी चीजें जो है मतलब वो स्लैंग बोलते हैं या झूठ बोलते हैं. लेकिन अगर मैं अपने पापा को इस तरीके से उस काम में होने के बावजूद भी वो उन्हें मैंने कभी भी किसी को स्लैंग या किसी से झूठ बोलते हुए नहीं देखा है. और जो मेरे सेकंड जो लीजेंड हैं वो है एक हमारे एक सीनियर हैं, उनका नाम है सिद्धांत. उन्होंने मुझे एक बार स्कूल से लौटने के क्रम में मुझे अ, नदी में डूबने से बचाया था. तो वो तो वो एक ऐसा मोमेंट है जो अपने मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ. ओके, थैंक यू. जी, बहुत बढ़िया राजू जी. आपने बताया आपके फादर आपके पर्सनल एजेंट है, और जिन्होंने आपको डूबने से बचाया था, और आपने इस पर्सनल लेजेंड टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया. सो मेरे हिसाब से अब सभी ने बोल दिया है. तो
अब मैं बोलता हूँ. So this is Manoj Rathod, and today's topic is a personal legend. When we think about personal legend, it is a person who can change your future, like a miracle, magic, mysterious force behind. And if I talk about my stammering, then before I not joined TISA, I worked with myself, reading books and talking with alone. I am not go to face any stranger, any shop to practice prolongation and pausing technique. Go to the garden. I not used to. I have so much fear. Then after 2 and 3 months, I joined some group and where I meet the Harunji. Yes, Harunji. And then my stammering journey started. Then Harunji give me some task, go in garden. In first time I go to the garden and picking my phone and around shooting me and going to the garden and talking to one stranger who is Uncle Ji, and I talking like a confident person because when I start this, I have lot of question. I have all this question quoted to Harunji. Can can explain me what I do. I have nothing or experience in front of stranger in outdoor, uh, having a phone and shooting me. I don't. It is my first time. Then I uh, complete the video. Then I come to home. Then send to the Harunji, and Harunji give me some reviews. Uh, that is your good way, and they said you are doing too much good. And I know I am shuttering well. I am using a hand movement. My eyes blinking total, but he said you are good. Then then after he is giving me lot of task, do with a friend, do with your teacher, and recording, then send me and I will give you the reviews. Then then my stammering journey are started, and I have lot of question, small to small question I asked to the Arunji, and they always answer me. My uh, question is little bit like a small child, like everything I ask to the Harunji. What I do, I shutter at ma, I shutter at pa, everything I ask to Harunji. Then he answered. So if I talk, what is my personal legend in stammering? So I say to the Harunji, because then my stammering journey are started, and now I am speaking like normal and good. So totally credit goes to the Harunji. So then my stammering journey are started, and now I am speaking like that and hosting the once first time, and supported by the Harunji. So that is my review on a personal legend. Thank you. On to Harunji. थैंक यू मनोज जी, आप तो आज ने मुझे बहुत मक्खन लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि आज नींद भी नहीं आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, तो उसको सिर्फ़ एक शाइन करना था। तो आप में एक जो चीज़ मैंने देखी कि कॉन्फिडेंस था और एक कंसिस्टेंसी थी। वरना मेरे पास और भी बहुत लोग आए, उनको मैंने टास्क दिए और वो मुझे फिर दोबारा मिले ही नहीं।
लेकिन मैंने आपको डिफरेंट टास्क दिए, मैंने कहा ये लड़का नहीं कर पाएगा, ये भाग जाएगा, लेकिन आप मुझे हर टास्क करके ला कर देते थे और डिफरेंट मुझसे क्वेश्चंस भी करते थे, अपने डाउट्स को क्लियर भी करते थे। तो मैं कहूँगा कि उस्ताद को अजीम वो खुद नहीं होता, बल्कि उसके स्टूडेंट्स उसको अजीम बना देते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। अबे बहुत से काम आपने अपनी लाइफ में करने हैं और आगे बहुत आगे जाना है। तो गुड लक। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हारून जी। सो हमारे पास अभी 3 मिनट बचे हैं, तो if you Yeah. want- Mhm. जी सिद्धार्थ, यू वांट टू से So, समथिंग? will this video be uploaded to YouTube or not? Recordings. Will this be uploaded to YouTube? Okay. Yes, So every day's recording gets uploaded, right, to YouTube? depends on host. Acha. Yes, So okay. So when it is that it's not get uploaded to YouTube? Like मतलब कब मतलब वीडियो अपलोड नहीं होता है यूट्यूब पे? I said it's depends on host. If a host want to अच्छा record अच्छा and upload on his YouTube channel. अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। So now we have 2 minutes left. If someone want to say how they deal with frustration, uh, then we can say, like, raise your hand and say. जी, अजय जी, गो। आई थिंक आपने बोला कि फ्रस्ट्रेशन को कैसे डील करते हैं, क्या मैं सही समझा हूँ? यस। बेसिकली बहुत टाइम हो गया फ्रस्ट्रेशन होते होते, और बहुत जब छोटे थे तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ कई चीज़ें सीखी हैं। वो ये सीखी हैं कि बहुत से लोगों के तो जबान ही नहीं होते हैं, कई लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं, कई लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता है। मेरे पास तो ये है कि कभी कभी अटकते थे, कभी कभी रुकते थे, कभी कभी फंबल होते थे। सो फ्रस्ट्रेशन को डील करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने से नीचे वाले को देखिए। अगर जो आप ऐसा कर पाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम होगा। और दूसरी बात, माइंडफुलनेस को यूज करना है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहने के लिए ट्राई करना है। जितना ज्यादा प्रेजेंट में रहेंगे, उतना ही पास्ट को लेकर के फ्रस्ट्रेशन कम होगा, फ्यूचर को लेकर के एप्रीहेंशन कम होगा, फ्यूचर का डर, पास्ट का दुख वो कम होता जाएगा। तो ये कहना बहुत आसान है, बट यही एक प्रैक्टिकल मेथड है जिससे कि फ्रस्ट्रेशन कम से कम होगा। और एंजाइटी को कम करने के लिए कई ढेर सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं। उसमें से एक है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली करना, गहरी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना। इससे एंजाइटी कम होगी। फ्रस्ट्रेशन के लिए माइंडफुलनेस और अपने से नीचे वालों को देखना, इससे फ्रस्ट्रेशन कम होगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाना वो इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज हम सभी लोग रियल वर्ल्ड में हैं और हम लोग सेंट नहीं हैं। लेकिन जितना ज्यादा इसको अप्लाई कर पाएंगे अपने लाइफ में, उतना ही ज्यादा फायदा होगा फ्रस्ट्रेशन के लिए और एंजाइटी के लिए।
थैंक यू सो मच मनोज जी, मुझे अवसर देने के लिए बोलने। जी, थैंक यू अजय जी। जैसा है कि हम जहाँ पर हैं उससे नीचे वाले लेवल को देखें और मोटिवेट रहें, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। मेरे टीचर ने भी मुझे यही एग्जाम्पल दिया था जब मैंने यही क्वेश्चन उनसे पूछा था। तो जी, आपने बहुत अच्छा बताया। एंड एनीवन वांट टू से हाउ दे डील विद frustration? So okay, and thank you for joining the Manoj host launch. जी, थैंक यू सो मच मनोज जी, सिद्धार्थ थैंक जी, यू आकर्ष, संतोष जी एंड हारून भाई। गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, आपने बहुत अच्छे से लिया मीटिंग को। जी, थैंक good यू। night everyone. गुड नाइट। गुड नाइट।